Hello. The lesson that we are going to learn is transportation in human beings, and the topic is blood vessels. आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स. The topic blood vessel will be introduced to you through colored images of blood vessels present in our body. और साथ में आपके लिए ब्लड वेसल्स की लिस्ट भी बताई जाएगी. We will look at the blood vessels of human body by using colored images of these vessels, and we will also prepare a list of the blood vessels present in our body. After this video lesson is over, you should be able to identify the blood vessels by looking at the images, and you should also be able to list out the different types of blood vessels present in our body. Let us observe the blue, red, thin and thick pipe systems within our body. अभी हम इस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे जो स्लाइड पर दिखाया गया है, और इस इमेज में हम क्या देखेंगे कि कुछ ब्लू कलर के पाइप सिस्टम्स हैं, कुछ रेड कलर के पाइप सिस्टम्स हैं, और यहाँ हम जो पाइप कह रहे हैं उसको जब हम ब्लड को कैरी करते हुए देखते हैं, या ये कहते हैं कि ये जो पाइप सिस्टम है वो ब्लड को फ्लो कर रहे हैं या फिर वो ब्लड को कैरी कर रहे हैं, then we call them vessels या blood vessels. It means that the pipe system that we are observing in the image here, these pipe systems carry blood to different parts of the body from the heart, and then they also bring back blood from different parts of the body to the heart. इस इमेज में हम जो पाइप सिस्टम देख रहे हैं वो पाइप सिस्टम हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाते हैं, और फिर यही पाइप सिस्टम वापस बॉडी के अलग अलग हिस्सों से हमारे हार्ट तक ब्लड को लेकर के आते हैं. Then we have used blue and red coloration to show different types of pipes transporting the blood of different the blood which has different amount of oxygen present within it. जैसे कि हमने काफी बार डिस्कशंस में देखा है और हमने ये जाना भी है कि जो रेड कलर के वेसल्स यहाँ हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. और यही वजह है कि हमने यहाँ कलर डिफरेंस दिखाया है. अगर हम रेड कलर को देखते हैं तो हम कहेंगे इन ब्लड वेसल्स में, रेड कलर वाले ब्लड वेसल में ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट है, और ब्लू कलर वाले ब्लड वेसल में ऑक्सीजन पुअर ब्लड है. अब हम इन ब्लड वेसल्स के स्पेसिफिक नेम पे आते हैं. Let us come to the specific name given to the blood vessels present in our body. जैसा कि आप देख सकते हैं, look at the red left side image which is written 1. क्या हम देख सकते हैं
कि ये जो रेड कलर का ब्लड वेसल है इसको हम आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लू कलर का ब्लड वेसल है उसको हम वेन कहते हैं। रेड कलर के ब्लड वेसल को हम आर्टरी कहते हैं और ब्लू कलर के ब्लड वेसल को हम वेन कहते हैं। अब ये जो रेड कलर के ब्लड वेसल है, इनके अंदर जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, और जो ब्लू कलर के ब्लड वेसल है जिसको हम वेन कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। अब अगर हम इस इमेज को देखते हैं जिसके ऊपर अभी मैं कर्सर दिखा रही हूं, स्क्रीन पे देखते हैं, तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स और रेड कलर के ब्लड वेसल्स मतलब वेन्स और आर्टरीज का एक नेटवर्क बना हुआ है। इफ वी लुक एट द इमेज हियर, इमेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग and the internal network of blue and red colored blood vessels, we find the network is very extensive, and this network is actually running all across our body, from head to toe to fingertips to each and every part of the body. So what do we find? That arteries, veins, they together form a network of blood vessels within our body which help in blood flow. Okay? अब हम आगे चलते हैं. So what happens when the blood flows in our body? The system or the network of the blood vessels present in our body which transport blood from heart to each and every part of the body and from each and every part of the body to the heart. This network of blood vessels is called as circulatory system. And our circulatory system composed of arteries, arteriole, capillaries, venule, veins. Okay? हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं, और इस नेटवर्क को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाए रखने के लिए किन वेसल्स की जरूरत होती है? आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन, ये सारे वेसल्स मिलके जो नेटवर्क बनाते हैं उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और ये सारे वेसल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब अगर हम फिर से इसी ब्लड फ्लो को देखना चाहेंगे, ब्लड वेसल्स के वर्क को देखना चाहेंगे, फंक्शन को देखना चाहेंगे, सो व्हाट डू वी फाइंड? हमें क्या देखने को मिलता है कि हार्ट इज सेंडिंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स, लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन आता है, अब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हुए हार्ट में आता है, फिर हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स में आता है, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में जाता है, हमारे बॉडी टिश्यूज में, सेल्स में जाता है, ठीक। फिर वहां से ऑक्सीजन पुअर ब्लड वेन्यूल्स में जाता है, वेन्स में आता है, और फिर हार्ट में आ जाता है। तो इस तरह से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब इस चीज को हम थोड़े और अच्छे से देखते हैं। जब हम कैपिलरी कहते हैं तो ये बहुत थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आर्टिलरी की कैपिलरी, आर्टरीज से भी कैपिलरीज निकलते हैं और वेन से भी। तो जैसे जैसे आर्टरीज और वेन्स के डायमीटर कम होते जाते हैं, उनकी डायमीटर यहाँ कम होती जा रही है, तो जो बड़ा डायमीटर वाला ब्लड वेसल है यहाँ ब्लू कलर का, इसको हम कहेंगे वेन्यूल। इससे जो बड़ा डायमीटर का ब्लड वेसल वेन्यूल से कनेक्टेड होगा वो होगा वेन। अभी हमने पहले के डायग्राम में देखा था। तो वेन अगर उसके डायमीटर कम होते हैं तो बनते हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के डायमीटर कम होते हैं तो वो बनते जाते हैं वीनस
कैपिलरी। उसी तरह आर्टरीज के डायमीटर कम होते हैं तो वो बनते हैं आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स के डायमीटर जैसे जैसे कम होते जाते हैं वो ब्रांचिंग होते जाते हैं और वो बनाते हैं आर्टेरियल कैपिलरी। तो हम जब कहेंगे कैपिलरी तो दैट डिनोट्स बोथ आर्टेरियल कैपिलरी एंड वीनस कैपिलरी। आर्टेरियल कैपिलरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और वीनस कैपिलरी में ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। तो लेट अस लुक एट द circulatory system and capillary blood flow here. So the arteries bring oxygenated blood or oxygen rich blood from the heart, then to the arterioles, then to the arterial capillary. The oxygen is given to the blood tissues and the cells. Now the venous capillary takes up the oxygen poor blood. Okay, then that transports the oxygen poor blood to venules, then to veins, and then the veins carry deoxygenated blood or oxygen poor blood to the heart, and this circulation of blood happens continuously in our body. So we have come to know about three major types of blood vessels today. These are arteries, veins and capillaries. Based upon today's lesson, you have to do some homework. Your first question is, you have to draw the diagrams 1 and 2. Now you may wonder, where are these diagrams 1 and 2? So let us go back to our slides and let us find out diagram 2. Here it is diagram 2, which shows circulatory system, capillary blood flow, and then we have diagram 1, which shows blood flow in blood vessels. So you have to draw these two diagrams, well labeled diagrams in your science note copy. Then you have to write arteries carry blood from. Arteries कहाँ से blood लेकर के आते हैं, and veins carry blood too. और veins blood कहाँ लेकर के जाते हैं. Okay, these three questions you have to do. Thank you.